So, thank you for joining me for all these days. It's been really nice. You've been a great batch and you've been trying to answer, you've been trying to maintain your concentration, you've been trying to follow what I asked you to do. So, trying is good. I want you to keep trying. Okay? So, I'm not expecting anything more or much, but I want you to all keep trying. Yes, will you do that? Okay, so now, what do I want you to do as far as not just my subject is concerned, in general your preparation is concerned? So हम ये लिख लेंगे और फिर मुझे आके बताओगे कि हम क्या क्या फॉलो कर पा रहे हैं और क्या क्या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक? Now please remember your preparation has three limbs. One is your content, so we have to do something for it. One is your MCQs, so we will do something for it, and the other is revision. The order has to be the order in which we have writing it, as I always do in my class. The first thing to work on is your content. Then to add to it is MCQ practice, and the third is revision. Starting the other way around will not work, which means मैम कुछ छोटा सा बता दो कर लूँ और हो जाए, नहीं होगा, ठीक है? So if your content is weak, it won't happen. And how do you decide whether your content is weak or not? Okay, so I'm going to be a little brutal. If your number of correct questions in GT is less than 120, your major problem is your content. मतलब हमें अभी आता ही नहीं है और हमारे MCQ इसलिए नहीं सही हो रहे हैं और इसीलिए अभी रिविजन से बाहर नहीं बनेगी. क्या रिवाइज करोगे? रिवाइज करने के लिए पहले सामान तो होना चाहिए. अगर वो सामान में ही कम नहीं है तो उसको 10 बार में पढ़ लो, हिट रेट नहीं आएगा, ठीक है? सो द ऑर्डर हैज टू बी दिस ओनली. इट हैज टू बी योर कंटेंट. You reach a baseline correct question which is 120, 125 purely with content. Then you start working on the MCQ skill part. You reach 135, 140, and then it is the role of revision. Okay? If you think revision is your problem and that is why now my number of correct questions is less than 100, you are not even having an insight into what is the problem. Okay? So now you're already working on the content, but how to ensure that you are working on the right way? Okay? When I say content, सबसे पहले नंबर पे it is your class notes. You need to be thorough with it. You will not need anything outside it, right? So class notes में दो पार्ट होंगे. कुछ conceptual पार्ट होता है और कुछ memory वाला पार्ट होता है, ठीक है? और कुछ डेप्थ होता है. कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने कोशिश करनी है कि हम क्लास में ही खत्म करेंगे, राइट? विच मीन्स इफ वी आर टेलिंग यू द व्हाई बिहाइंड समथिंग, इट शुड बी सॉर्टेड इन द क्लास इटसेल्फ. ये नहीं होना चाहिए घर जाके मुझे व्हाई की दोबारा पढ़ना है या मुझे उसका वीडियो दोबारा देखना है आपके पास सब कुछ, बट इस विशियस साइकिल में नहीं घुसना है. Right? So conceptual part has to be sorted from the class itself. Okay? Memory, yes, it will take time, and it is okay not to know it right in the beginning. You will forget also, which is very natural. Depth. Depth से मतलब है हमने एक टॉपिक पढ़ा, आज हम उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि मैम ने पढ़ाया था और मैम ने ऐसे ये लाइन लिखी, ठीक है? मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने अभी उठा लिया हाइलाइटर, मैंने डिसाइड किया मैं ये पढ़ूंगी और ये पढ़ूंगी. संभव मुझे ऐसा लगा कि बाकी नहीं चाहिए था. मैम अपनी रिवीजन करने आई थी, करके चली गई. वे भूल जाती हैं, कहीं तो बोलेंगी जा जाके बार तभी याद रहेगा. तो you yourself have decided that out of 10 lines you will remember these 3 because you feel these 3 are important. तो आपने क्या लैक किया? डेप्थ, राइट? अभी पता भी नहीं लगेगा कि आपने उसे छोड़ा है. चलो थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है? कि इतना भी नहीं करोगे, कुछ तो पढ़ ही लोगे, ठीक है? सो ये पढ़ा हमने. अब मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैंने पढ़ा है मैंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वो तभी पता लगेगा when I learn
how to use this information in the format in which it will come in the exams. पढ़ना एक बात है, लेकिन क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है. So इसीलिए it does not matter whether you are doing 100, 200 or 300 MCQs in a day or not. You have to start somewhere. What is the ideal number? I'm sure Dr. Sumit has told you this multiple times. Yes. Ideal number is 50 MCQs every day. अगर हम ऐसा सोचेंगे कि आज रात को बैठेंगे सारे 50 एक साथ कर लेंगे, वो नहीं होगा. कुछ ऐसा भी सोचते हैं आज की 50 कल की 50 मिला लूंगा, परसों 100 इकट्ठे कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा. यू आर ओनली डेफरिंग इट. ओके, इसलिए मैंने बोला हाउ टू मेक इट डूएबल, बिकॉज वी हैव कम फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ. वी हैव बीन थ्रू द सेम फेजेस. सो ऑलवेज people who break their targets into small well-defined targets are more likely to meet their targets. Often I meet a student who says, मैम कल ना नॉन क्लास डे है, कल मैंने ऐसे सोचा मैं 10 घंटे ना फिजियो का बैकलॉग खत्म कर लूंगा. मैं उसके सामने हंसती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता, तो मुझे पता है वो नहीं करेगा, क्योंकि ये टारगेट ही नहीं कोई 10 घंटे में फिजियो का बैकलॉग क्लियर करूंगा. ये उतना ही हवा में बात है जितनी एक्चुअली में लग रही है. सो आई डोंट वांट एनी टारगेट्स लाइक दिस. इसलिए मैंने बोला हमेशा if you have time, even if it is 1 hour, who is more likely to revise? A student who exactly knows what they want to revise is more likely to do it. For example, आज मान लो क्लास थोड़ी जल्दी खत्म होता है शाम को, और आपको कुछ कल वाला याद करना था या परसों वाला करना था. एक बच्चा सोचेगा यार ये याद करने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए, आज एक ही है, आज नहीं करेंगे, जब 3 मिलेंगे तब करेंगे, वो नहीं होगा. तो आप सिर्फ उसे पोस्टपोनमेंट की तरफ डाल रहे हो, कर नहीं रहे हो. इसलिए हमेशा बच्चे अपने टारगेट को छोटा डिवाइड करो. आपको नहीं पता अगर आपकी क्लास से आने से पहले कि मैं ना बिखरूं, क्योंकि मेरे को ऑप्शन गाइड अगर मैं शुरू करती हूँ तो अंत ही नहीं होगा कोई. ठीक है, तो मैं क्लास में बैठने से पहले अभी आके चाहे मेरे नोट सेक्शन चेक कर लेना, मैं अपनी टारगेट बनाती हूँ. 10 बजे शुरू करूंगी, 10 से 10:40 तक मुझे ब्रीच हर हाल में खत्म करना है. 10:40 से लेके 11:20 तक मुझे बाकी नारी प्रेजेंटेशन खत्म करने हैं. Yes, sometimes even I go, beyond. But you come and check my notes. For every day that I've taken a class, I've had a target. And when I don't meet my target, I'm really upset about it. Okay? It has to be this way for you also. एक ही घंटा है, हो सकता है पूरी एनाटॉमी नहीं पढ़ पाओ, मगर क्या एनाटॉमी का एक छोटा भाग, एक टॉपिक, सब टॉपिक, क्या वो पढ़ सकते थे? यस. बट प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे पूरी एनाटॉमी नहीं आती. ठीक है, वैलिड है. तो इसीलिए अगेन यू हैव टू गो बैक टू एमसीक्यूज. कैसे पता लगेगा कि मुझे पूरी एनाटॉमी याद नहीं थी, या मे बी ब्रेकियल प्लेक्सस का ये वाला पर मोटर न्यूरॉन या कोई और ये चीज याद नहीं थी. You will only get to know this when you start solving questions. So instead of seeing questions as something which is giving a judgment on you, मैंने 5 के ऊपर मैम मेरे तो 3 ही सही होते हैं. The reason why we are doing it is कि मुझे ये पता लग जाए कि कौन से तो गलत करें बाबा, right? So that I can exactly figure out that these are the subtopics I am doing wrong. For example, if you come and tell me, मैम मेरे PPH में बड़े MCQ गलत हो रहे हैं, मैंने सोचा मैं PPH पूरा पढ़ूंगा दोबारा, important भी है मैम. तो you need good 2.5 hours to do it if you haven't done it well before. It's a big topic, it's important. What is the problem? You again start from first page of PPH and you will exactly read it the way you read it in the first go. मतलब हम सबका ये होता है, जब हम किताब शुरू करते हैं पहले पेज में कंसंट्रेशन 100%, एकदम एक एक लाइन पढ़ी जा रही है, सब दिमाग में घुस गया, सब आ गया. जब तक 3 पेज निकले आप मन कर रहा है 10 में से 4 ही लाइनें पढ़ने, और अंत में यार ये वाला टॉपिक तो आता ही नहीं है, कौन पूछता है, मैम ने ऐसे लिखा है, ये छोड़ देते हैं, ये वाला कर लेते हैं. तो मतलब
You will read it exactly in the first way as you did it in the first go. अब उसमें बताओ क्या प्रॉब्लम होगा? जो पहले वीक था वो सेकेंड रीडिंग के बाद भी वीक है एंड योर नंबर ऑफ करेक्ट विल नॉट इम्प्रूव. फिर आप बोलते हो मैम मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ मगर करेक्ट नहीं हो रहे. क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम बार बार एग्जैक्टली सेम तरीके से एग्जैक्टली सेम चीज पढ़ रहे हो. क्योंकि तुमने ये कोशिश ही नहीं करी ढूंढने की कि क्या पीपीएच में से अगर मैं ये लिख लेगा कि मैडम AMTSL में मेरे ड्रग्स में से डोजेस गलत हो जा रहे हैं. तो इट इज वेरी स्पेसिफिक and you need hardly 10 minutes to go through it. You don't need 2.5 hours to go through it. And suddenly you have converted a non-doable target into a doable target, which will also increase your number of correct questions. So please start solving MCQs. And more importantly, rather than focusing on kitne sahi, kitne galat, identify what you are doing wrong. Now, if you have done it wrong, what is the next thing I want you to do? And only if you do this can I actually reach the revision phase. Okay? None of you are able to do the revision right now. क्यों? हम अभी तो कोर्स ही नहीं खत्म हुआ, अभी तो पढ़ रहे हैं. जब खत्म हो जाएगा फिर रिविजन करेंगे. तो मतलब हर चीज में हमारा एक डिले है, आगे करेंगे. ठीक है? ये सोचते थे कि आगे शायद चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी, बट आगे एंजाइटी और बढ़ती रहती है, राइट? स्ट्रेस बढ़ता रहता है. So when you do it wrong, I want all of you to identify these three things. Number one, is it a content error? Content error में मैं दो में डिवाइड करूंगी. एक content error जहां मुझे एप्लीकेशन नहीं आई, मतलब मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा था, मैंने टॉपिक भी पढ़ा था, but somehow I still did it wrong. So it is an application problem. एक प्रॉब्लम है जहां मेरे को कंटेंट में डेप्थ ही नहीं थी. ठीक है? ये कैसे पता लगता है? When you say ma'am I'm always confused in two options. ये बात मैंने शुरू में भी करी थी. Even toppers will be confused in two options. What is the difference? Number of questions. अगर उनको 10 क्वेश्चंस में डाउट होता है इन टू ऑप्शंस, आपको वो डाउट शायद 40 में हो रहा होगा. So if your number of questions where you're confused in two options is more, then depth is your problem. क्यों? जब तक ऑप्शन सुपरफिशियल होती हैं आप उन्हें रूल आउट करना शुरू कर देते हो, but once they become very close, which needed some more information, you are confused, right? So डेप्थ के लिए क्या करना है मैं बताऊंगी. तीसरा प्रॉब्लम है मेमोरी. मैम ये मेरा एमसीक्यू इसलिए गलत हुआ क्योंकि मुझे ना ये फैक्ट याद नहीं था, या ये ऑर्गेनिज्म याद नहीं था, ये आईओसी याद नहीं थी, ये नेक्स्ट स्टेप याद नहीं था. ठीक है? फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दिस? इफ इट इज एन एप्लीकेशन प्रॉब्लम, प्लीज लिसन टू वीडियो सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू इट ऑन योर ओन. When the teacher tells you कि ये था, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, इसीलिए I should have thought of this. It tells you where you were lacking to make connections. So video solutions are very good if there is an application concern, and they're like short. And we give video solutions in everything except for mock test. GT में, SWT में, तुम्हारे क्लास टेस्ट में, तुम्हारे CBTs में, तुम्हारे DQB में, हर चीज में वीडियो सोल्यूशन है. So if आपको लग रहा है आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा था मगर आपका फिर भी गलत हुआ, प्लीज लिसन टू द वीडियो सॉल्यूशंस, दे विल बी अ गेम चेंजर. इफ डेप्थ वाज अ प्रॉब्लम, गो बैक टू मेन नोट्स. उस टॉपिक के मेन नोट्स खोलो एंड रीड द रिमेनिंग लाइंस, राइट, व्हिच आई एम श्योर यू मिस्ड ऑन, सम वर्ड्स यू मिस्ड ऑन. ओके? मेमोरी. मेमोरी के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं. या हम अलग से कॉपी में लिख सकते हैं memory based things which we are doing wrong. Either we can write them in a separate copy so that ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं and you can flip through this intermittently after every few days, right? Or the other way is highlight in your main notes.
फॉर एग्जाम्पल नोट्स में बहुत सारे फैक्चुअल चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजों की प्रोबेबिलिटी पेपर में आने की ज्यादा होती है, कुछ की कम। वो तब पता लगेगा जब हम खूब सारे एमसीक्यू और जीटी दे देते हैं, ठीक है। अब जो चीज मेरी टेस्ट में, चाहे वो क्लास टेस्ट था या जीटी था, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, उसके लिए मैंने कोड बना लेना है रेड। तो मेन नोट्स में हर जगह मैं रेड सिर्फ वही हाईलाइट करूंगी जो पेपर में भी आए हैं और मैंने भी गलत किए हैं। सो सारे फैक्चुअल चीजों को रेड नहीं करना हमने, वो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। हमने किसको करना है, जो जीटी में भी आए या क्लास टेस्ट में भी आए और मैंने गलत भी किए क्योंकि मुझे याद नहीं थे। तो देन वी आर फिल्टरिंग आउट। I want to give more importance to those factual questions which have higher probability of being asked. ठीक है? Now, इस entire concept को जो मैंने अभी आपको बताया, इसको मैं कहती हूँ wrong diary. Start maintaining it. Anybody who is doing it will be able to reach the third limb, which is revision. Not only after you finish your course, but even today. Even if you start today, there is a lot of time, and this is one foolproof way of increasing your knowledge. For example, जैसे मैंने कहा, आज क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म हो जाए, वापस सिर्फ 1 घंटा हो, कुछ पुराना रिवाइज करने का मन कर रहा है क्योंकि चलो ऑफ से थक गए, कुछ और पढ़ लेते, लेकिन क्या पढ़ें यही समझ नहीं आता। अगर सब्जेक्ट समझ में आ गया तो सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़े ये समझ नहीं आता, और इवेंचुअली हम करते ही नहीं। अगर मैंने ये रॉन्ग डायरी मेंटेन की हो, जिसमें से मुझे ये पता है कि फिजियो में, एक्शन पोटेंशियल में मेरी ये चीज गलत होती है, तो अभी मुझे सिर्फ वही खुली है। एंड आई वॉन्ट यू टू इवेंचुअली स्टार्ट स्पेंडिंग 1 hour at night. You can start with 30 minutes also. 30 minutes is also good. Gradually increase it to 1 hour every night. ये मतलब होना ही चाहिए, जैसे खाना खाते ही है ना, वैसे ये करना ही करना है। 1 घंटा अपनी रॉन्ग डायरी को देना है। उससे क्या होगा, तुम एक चीज है जो एक्टिवली हमारे साथ क्लासेस में आके पढ़ रहे हो, मगर कुछ और तुम रिविजन भी करोगे पैसिवली, और वो चीजें होंगी जो तुम्हारी वीकनेस है। सो सडनली यू विल सी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी रिवीजन भी साथ साथ शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि एंड में हम करेंगे, राइट? एंड इट विल बी वेरी टारगेटेड रिवीजन. It is those things which are being asked, those things which you don't know or you are forgetting, right? So anybody who maintains the wrong diary can start revision even from today. उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, right? बाकी ये जो फाइनल रिवीजन है वो तो हम करेंगे, which is going to be through DVT. DVT would not be anything new, no bombardment of extra information, useless stuff, no. It is going to be a summary of your own notes, but the summary will be done by the teachers so that there is no bias. Okay? बहुत सारे आप बच्चे कहते हैं ना हम कस्टम टेस्ट बनाने, मतलब मैंने भी तुम्हारे लिए टेस्ट बनाया, वो तुम नहीं करोगे, तुम अपने लिए एक अलग से टेस्ट बनाओगे। क्यों? तो तुम्हें लगता है होशियार ज्यादा। प्रॉब्लम क्या है, उसमें आपका बायस आ जाता है। या तो आप कहते हैं हम ना कस्टम टेस्ट करेंगे पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू नहीं आ रहे पेपर में, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन इट, टॉपिक्स आर कमिंग इन द एग्जाम। So if you keep doing PYQs and you do them 100 times, there is no guarantee you get a rank. ऐसा होता तो कोई भी 10 ईयर वाली किताब उठाए और रटे और पेपर दे। ठीक है? So please give the test that we are making for you because we want कि वो bias हट जाए। ठीक है? So इसीलिए even if you have given NEET PG once, फिर भी आपका एक्सपीरियंस हमारे जितना नहीं है। अगर आपने 1 टाइम दिया है, हम हर साल पता नहीं कितने सालों से थ्रू एवरी बच्चा we have been giving it. So we know what is the next level they will go to, what will they ask, how will they twist the question, what will they frame it from. Okay? So इसीलिए start doing these 3 things on a routine basis. हर दिन
कुछ एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए, चाहे वो क्लास में करो चाहे अपने आप करो। हर दिन कुछ एमसीक्यूज होने चाहिए, स्टार्ट विद 5 फ्रॉम ईच टॉपिक, और हर दिन कुछ पुराना रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, वो तभी होगा जब पहले 2 कर रहे होगे, नहीं तो वो तीसरा नहीं हो पाएगा। तो अगर वहां तक पहुंचना है तो पहले 2 शुरू करो, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग अ हैंग ऑफ क्या रिवाइज करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू पुश इट थ्रू एज वेल। ठीक, so these are things that I want you to follow. Okay, I don't think it's a very difficult thing to do. In fact, it is nothing very unique also. These are common things, but common things are not commonly done, right? So stick to what you have, do justice to it, and you will do well. See, I hope you understand कि आप और मैं, मतलब मैं खड़ी यहाँ हूँ आपके opposite. But do you realize this fact that every teacher जो आपके opposite खड़ा है वो actually आपके साथ है? मतलब do you think I would be of any value if you are not able to do observation questions in the exam? No. My value will only come when you do them right. So हमसे ज़्यादा bias तो किसी का है ही नहीं, मतलब हर कोई चाहता है कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से पेपर आए। आप समझ रहे हो, आप चाहो या नहीं चाहो, हमारी चाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अदरवाइज आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू फॉर यू। आई क्रिएट वैल्यू ओनली व्हेन यू फील कि हाँ जो मैम ने पढ़ाया वहां से पेपर आता है, आई एम एबल टू सॉल्व इट। सो वी आर ऑन योर साइड, नॉट ऑन द ऑपोजिट साइड। सो यू हैव टू गेट दैट sunk in कि दिस इज आवर टीम, नॉट अगेंस्ट अस। सो व्हाटएवर वी टेल यू, if at all there is a bias in it, it is only one, that you should score a rank. There is only one bias, right? So झूठ बोलेंगे नहीं हम, क्योंकि उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साथ नुकसान होगा। ठीक है? So even when we promote ourselves, even when I talk about myself, the only purpose is to make you believe that yes, we have done our best, it will help you in the paper, right? So आज से ये भी सोचना छोड़ दो कि टीचर ऑपोजिट टीम है, हम एक ही टीम है, फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। ठीक है, इसलिए जो हम बोल रहे हैं, चाहे आपको लगे इनका कुछ बायस है इसमें, वो बायस क्या है, तुम्हारी रैंक, वो तो होना ही चाहिए। अगर वो भी लालच नहीं करूंगी तो पढ़ा क्यों रही हूँ? ठीक है, सो इसलिए try and follow. I'm not saying right on day one you'll be able to follow 100% of the things. It's okay, let's start somewhere. Let's follow some of it. Come back to me and tell me what all you've been able to do from this, what all you not have been able to do. And I want a concrete evidence, not हवा। मैं कर रहा था मगर उसमें हो केस, I want a book. मुझे आके दिखाओगे, where is your round ID? What is the number of correct questions? How many questions did you maintain a tally or not of whether you're solving 5 questions per topic or not? ठीक है, so ये करेंगे, आपके गाइड की क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक, चलो।